So finding the odd one out. Moving on to the second point here. Let's read it out. Teacher, doctor, vegetable vendor, and lawyer. Out of these, who is the odd one out? So answer to this is vegetable vendor. The reason, what is the reason? Reason is because a vegetable vendor is the particular professional who is not qualified, and other three are all qualified. That is teacher, doctor, and lawyer. Apart from this, third point: postman, cobbler, soldier, and a police constable. Who is the odd one? We should move that particular person out. So answer is cobbler. Okay, because he works in private sector while other three work in the public sector. Clear? So postman and soldier as well as police constable. Moving on to the fourth point: MTNL, Indian Railways, Air India, Sahara Airlines, All India Radio. Which one is the odd one? Answer is Sahara Airlines, because Sahara Airlines is a private enterprise and other those companies are all public sector. Now moving on to another question, question number 5. In this question, it is asked: a research scholar looked at the working people in the city of Surat and found the following. Here we will see one column is there where a research scholar he is looking at the working people in the city of Surat, and he found this particular thing. Here it is written down: place of work, nature of employment, percentage of working population. So in the place of work, first of all, in offices and factories registered with the government. Nature of employment is organized, because the government officials or government department employees are considered to be in the they are coming in the organized sector work. So organized. How many percentage of people are working? According to this research scholar, there are 15 people who are working in the organized sector. Then apart from this, own shop, office, clinics and marketplaces with formal license, जो formal license के साथ work कर रहे हैं, offices और marketplaces में जो उनके offices हैं, own shops भी हैं, तो वो total number of ये सब जो different units हैं वो 15 हैं. People working on street, construction workers, domestic workers, ये सब unorganized sector workers हैं और वो total number are 20. And working in small workshops usually not registered with the government. ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो स्मॉल वर्कशॉप्स में काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है. राइट? सो क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट कंप्लीट द टेबल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन द सिटी. तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स हैं पूरी सिटी में वो कितने होने चाहिए. ठीक है, इस टेबल को कंप्लीट करना है. तो आंसर विल बी हियर एज 50. तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स थे, जो ऐसे प्लेसेस और ऐसे यूनिट्स जहां पे रजिस्टर्ड नहीं है, दोज स्मॉल शॉप्स और एनी अदर यूनिट्स जो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो वो 50 है आंसर है. ठीक है, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज, तो उसकी जो परसेंटेज अगर हम निकालें तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर दैट आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट आपके टोटल हैं 70%. राइट? तो इस तरीके से आपका यहाँ पे अगर फाइंड आउट करते हैं आप, तो हमारे 70% वर्कर्स यहाँ पे आर देयर इन द unorganized sector not registered with the government. Okay. If you will add the other numbers, then also you will get the answer as 50. How? The above numbers are 15 organized sector में, 15 again organized sector में जो हमारे clinics और shops थी, फिर unorganized sector में 20. ठीक है, तो 20 plus 15 plus 15, how much it will be? 30 plus 20, 50.
तो 100 में से 50 माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 50%, तो बचे रह गए 50, राइट? सो दिस इज हाउ. Then moving on to the question number 6, do you think the classification of economic activities into primary, secondary and tertiary is useful? Explain how. So economic activities in the three sectors, primary and tertiary or secondary sector, the economic activities should be classified. और कैसे करके क्लासिफाई करनी चाहिए, तो आंसर हम इसको पढ़ देते हैं वहां पे. The classification of economic activities into primary, tertiary and secondary sector is useful because the occupations are also taken up by the people in the country and gives information on the contribution of different sectors to the growth of the country. So it also helps in ascertaining as to which sector of economic activity contributes more or less to the country's GDP and per capita income. Because जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिफरेंशिएट करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, इससे पता चल जाता है दैट विच सेक्टर इज डूइंग बेटर, तो एक कंपैरिजन हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है? तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड क्लासिफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू दीस थ्री सेक्टर्स. Seventh question is, for each of the sectors that came across in this chapter, why should one focus on employment and GDP? Could there be other issues which should be examined, discussed? तो यहाँ पर directly question is asking from us that whatever sectors we have studied in this chapter, why should one focus on employment and GDP? हमें employment और gross domestic product के ऊपर क्यों focus करना चाहिए? क्या और भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, तो इसके ऊपर हमें डिस्कस करना है. आंसर आई एम गोइंग टू रीड टू यू. फॉर ईच ऑफ द सेक्टर्स दैट वी केम अक्रॉस इन दिस चैप्टर, वन शुड फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी बिकॉज दीज डिटरमिन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. क्योंकि इन्हीं दो मेन जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी से किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को हम डिटरमिन कर सकते हैं, राइट? In terms of economic growth हम इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं. फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी हेल्प्स डिटरमिन टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. हमारे पास टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं वो हमारी एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी से आती हैं, दैट इज पर कैपिटा इनकम एंड प्रोडक्टिविटी, both the things that we get. Hence, in each of these three sectors, employment rate and status as well as its contribution to GDP help us understand how that particular sector is functioning and what needs to be done for its further growth. Okay, तो हमें हर सेक्टर को जब उसमें एम्प्लॉयमेंट रेट भी देखते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, तो हमें पता लग जाता है कि दैट इन विच सेक्टर मोर अटेंशन हैज टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी उन एरियाज और उस सेक्टर्स में बढ़ने पाए, ठीक है, इंक्रीज होने पाए. तो बाद में फर्दर ग्रोथ के लिए हमें रास्ते मिल जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को मतलब वेज मिल जाते हैं कि कैसे करके उसको एफर्ट्स करके इम्प्रूव किया जा सकता है एक पर्टिकुलर सेक्टर को. देन अदर इश्यूज कौन से हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था. तो उसमें से वहाँ पर सम अदर इश्यूज आर लाइक दैट ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी है ना, उसको देखना बहुत जरूरी है, उसका रिकॉर्ड रखना. हेल्थ केयर फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी पर्सन विद लेस एंड लेस प्राइस, बिकॉज जो मेन एक एम होता है गवर्नमेंट का होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके, और इसमें हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. एजुकेशन अनदर वन, फूड प्रोडक्शन अनदर वन, एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो दीज आर द अदर इश्यूज. क्वेश्चन 9 इज, हाउ इज द टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स? टर्शियरी सेक्टर अदर सेक्टर से क्यों डिफरेंट है? इलस्ट्रेट विद फ्यू एग्जांपल्स. तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से पता है टर्शियरी सेक्टर क्यों अलग है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से. हम उसको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. आई रीड द क्वेश्चन, आई रीड द आंसर फॉर यू. द टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. दिस सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स बाय इटसेल्फ, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर कोई गुड्स नहीं प्रोड्यूस करता, बट यहाँ पे सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं और जो सपोर्टिंग होती हैं प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए. दिस वी हैव ऑलरेडी लर्न. द एक्टिविटीज अंडर टर्शियरी सेक्टर आर सपोर्टिंग फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस. तो हम इसको पहले पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल कौन से हैं इसमें से? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्टिविटीज, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, टेलर्स, ये सब आपकी टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज में हैं. नेक्स्ट, कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन नंबर 10. What do you understand by disguised unemployment and explain with an example each from the urban and rural areas? तो हमें
अर्बन और रूरल एरियाज में से हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करनी है और ये भी देखना है कि दोनों अर्बन और रूरल एरियाज में कौन से तरीके के आपके ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड पीपल या अनएम्प्लॉयड पीपल मिल जाते हैं. तो उनके एग्जांपल्स हम करेंगे. द answer is disguised unemployment is a kind of unemployment in which people seem to be employed. तो disguised unemployment situation कौन सी है? It is a type of unemployment situation where people are unemployed and actually में उनके पास जॉब नहीं होती but they are doing work with no full potential. वो full potential पे work नहीं कर रहे हैं. Actually they are unemployed. This situation is also called as hidden unemployment. इसे hidden unemployment भी बोलते हैं. जैसे कि एक फार्म के ऊपर 5 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है बट 7 वर्कर्स आर वर्किंग, तो उसमें से 2 जो है वो डिस्गाइज्ड है. हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे इसको. Such a situation arises when more people are engaged in work than required. जो रिक्वायर्ड वर्क है उससे जो रिक्वायर्ड लेबर है उससे ज्यादा वर्क करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन रूरल एरियाज, अब देखिए रूरल एरियाज में कौन से होते हैं ऐसे ही अनएम्प्लॉयड पीपल. सो दीज आर द, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में. लाइक दैट ऑफ द लैंडलेस रूरल लेबरर्स जिनकी अपनी खुद की लैंड नहीं है ना रूरल एरियाज में. दीज आर द ऑल disguised unemployed people or maybe those people unemployed who are not working to their full potential. And apart from this, in the urban areas if you'll see, there are different type of people who are not working up to their full potential. वो एक तरीके से unemployed है. तो ये कौन से वर्कर्स हैं? जैसे कि कैजुअल वर्कर्स like that of a plumber or any carpenter. All these are the examples of urban areas. Then we are going to see here what is the difference between open unemployment and disguised unemployment. Open unemployment में और disguised unemployment में हम difference देखेंगे और सबसे पहले उसमें देखिए और open unemployment क्या है. Open unemployment is a situation when a person when person has no job in hand, उसी को ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे. ठीक है. एंड दे डू नॉट अर्न एनीथिंग एट ऑल, उसी को ओपन अनएम्प्लॉयमेंट पीपल उसमें आएंगे. सो दिस इज द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज विजिबल. वो बिल्कुल विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, लेकिन आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं दिखाई पड़ता है. विजिबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन नहीं दिखाई पड़ती है. जैसे मैंने आपको बोला था एक फार्म के ऊपर अगर 5 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है और 7 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं तो उनकी विजिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ती है. वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है. ठीक है ना. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में विजिबिलिटी इज नॉट देयर, बट ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है. ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है. टर्शियरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. डू यू एग्री? क्या टर्शियरी सेक्टर हमारी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए वर्क नहीं कर पा रहा है? तो इसके लिए क्या आप एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट पर? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. आपको इसका रीजन का इस आंसर के सपोर्ट में रीजंस भी देने. तो आंसर में क्या लिखा हुआ है? नो वी डू नॉट एग्री, है ना. हम एग्री नहीं करते बिकॉज इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट टर्शियरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमी. बिकॉज हम डेवलप्ड कंट्रीज में देखा था आपकी जो टर्शियरी सेक्टर है वो ही सबसे ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है. डेवलप्ड कंट्रीज का टर्शियरी सेक्टर डेवलप्ड होता है ज्यादा सबसे. तो इसलिए अगर हमारा इंडिया में भी टर्शियरी सेक्टर इज डूइंग वेल तो इट इज अ टाइप ऑफ इंडिकेशन दैट टर्शियरी सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री. The tertiary sector has emerged as the largest producing sector, replacing the primary sector. और वो प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर रहा है. ठीक है. टर्शियरी सेक्टर, दिस सेक्टर हैज अ बिग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि हमने अभी पहले ही पढ़ चुके हैं इसको. And the GDP share of the tertiary sector has grown from around 40% in 1970 to more than 50% in 2030. तो बढ़ता जा रहा है. हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है वो राइज होता चला जा रहा है. ठीक है. कहां से कहां पे? 40% से 50% हो गया 2013 में. After this, question number 13. Service sector in India employs 2 different kinds of people. Who are these? तो सर्विस सेक्टर 2 टाइप ऑफ पीपल को एम्प्लॉय करता है. ये कौन से लोग हैं?
एक जो हाईली स्किल्ड है जैसे कि बैंक्स और आपके आईटी ऑफिशियल्स हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीचर्स, ये सारे हाई स्किल्ड वाले आपके जो टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज दे रहे हैं। और दूसरे हो जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ वर्कर्स आर लेस स्किल्ड जॉब्स में जो होते हैं टर्शियरी सेक्टर में, लाइक दैट ऑफ द प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन एंड carpenters like this. Now another question is workers are exploited in the unorganized sector. Do you agree with this view? तो हमने पहले देखा था unorganized sector में workers are exploited, right? They are giving low wages and there is no job security also. So give reasons in support of your answer. आपको आंसर पढ़ देते हैं. Yes, workers are exploited in the unorganized sector because there is no job security and they are paid lesser. Next question, how are the activities in the economy classified on the basis of unemployment, on the basis of employment conditions? तो economic activities कैसे करके हम classify करते हैं organized and on the basis of employment conditions. तो employment conditions के बेस पे हम organized sector और unorganized sector को लेकर के चलते हैं. तो इसमें आप organized sector को हम पहले ही देख चुके हैं that it is a sector which is providing a very good वर्किंग कंडीशंस जहाँ पे फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्किंग होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, प्रोविडेंट फंड स्कीम फॉर द एम्प्लॉइज और वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड हैं, प्लस दे आर आल्सो गेटिंग पेड लीव्स, पेड हॉलीडेज. ठीक है, ये सारा कुछ बेटर फैसिलिटी आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलेगी. बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसका जस्ट ऑपोजिट होता है, दैट इज देयर इज नो प्रोविडेंट फंड, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स और वेजेस जो होते हैं वो उन्हीं दिनों के मिलेंगे जितने में पर्टिकुलर वर्कर इज वर्किंग फॉर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. तो ये हम अभी ही ऊपर 15 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, इसमें आंसर इज गिवन टू यू. देन आफ्टर दैट एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NREGA 2005. ये है आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में. ये क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, तो हमने पहले इसको डिस्कस करा था. गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग गारंटेड जॉब्स टू दोज पीपल हु आर अनस्किल्ड इन द रूरल एरियाज, और इनको गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देती है गवर्नमेंट. लेकिन अगर जिन लोगों को 100 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो गवर्नमेंट इज गिविंग देम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इन प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 डेज. सो ये आपका NREG में होता है. यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम योर एरिया कंपेयर एंड कंट्रास्ट दैट एक्टिविटीज एंड फंक्शंस टू प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स. तो बहुत ही क्लियरली आपको पता होगा, विजिबल होगा, आपके लोकल एरिया में भी आप देख सकते हैं what type of activities are there which are related to the public sector and which are the activities related to the private sector. तो आपके लिए बहुत ही सिंपली अगर आप आपकी लोकेलिटी में देखें तो यहाँ पर आपको जितने भी आपके आसपास के एरियाज में अगर आप देखते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, दैट इज पब्लिक सेक्टर एक्टिविटी. अपार्ट फ्रॉम दिस रेलवेज अगर आसपास है तो क्या है, पब्लिक सेक्टर. फिर आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो आपकी गवर्नमेंट वाली होती है ना, तो वो भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, भी पब्लिक सेक्टर वाली है. लेकिन उसके बाद में अगर हम अपने आसपास की जो शॉप्स देखते हैं, बहुत सारी आसपास हमारे हैं, वो आपकी जो है प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है, राइट. एंड ऑल दोस टाइप ऑफ फैसिलिटीज लाइक दैट ऑफ द people who are coming to your house and selling goods, वो भी private sector companies से related. So this is the difference between private and public sector in your locality. Discuss and fill the table given. Question number 19 में देखते हैं. Discuss and fill the following table giving one example each from your area. तो हमें एक एग्जाम्पल जरूर देना है, ये जो आपका पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के लिए. आंसर में आप क्या लिखेंगे वहां पे, जो वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और एक बैडली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है. अगर आपका पब्लिक सेक्टर में देखा जाए तो वेल मैनेज्ड वाला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से देखा जाएगा तो दिल्ली में जो आपका मेट्रो रेल है, ठीक है, ये मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन वेल मैनेज्ड है. और बैडली मैनेज्ड आपका एयर इंडिया ले सकते हैं.
and on